السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اسلامک بیان وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی وظائف۔ یہ حکم جو دیا گیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندے یاد کریں اس کو، وہ بے نیاز ہے، لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کے یاد رکھنے سے بے نیاز ہے، لہذا اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہماری ہے، بندوں کی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گمراہی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا، جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہیں، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھیں۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے، اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے تھے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن۔ تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے جو کچھ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے، جس میں مشکل سے 15-20 منٹ میں بے روزگار ہوں اور روزگار کے لیے میں نے کہیں پر کوشش کی ہے، کوئی ملازمت کی درخواست کی ہے، ایک دو جگہ
सबसे पहले तो मैंने अर्ज किया था कि तिलावत दुआ कर ली कि अल्लाह मुझे रोजगार अता फरमा दीजिए। ये अब आदमी को ये मुतमईन होना चाहिए कि मैंने जो अपने करने का काम था वो कर लिया, कि जब तक अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे वही मिलेगा। बहुत तिलावत नहीं कर लूंगा, रोजगार मिल जाएगा, किसी काम अल्लाह का शुक्र है। नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा सब्र करूंगा, अल्लाह से कुछ शिकवा नहीं करूंगा, अल्लाह से कुछ शिकायत नहीं करूंगा, गिला नहीं करूंगा। नहीं, वो तीन काम है जो भाव पा रहा हर परेशानी मजबूर आदमी है तो चाहे एक रुकू पढ़ ले, लेकिन तिलावत के बगैर कोई दिन खाली न जाए। पिछली मर्तबा में अर्ज कर चुका हूँ तिलावत के क्या फजाइल हैं और उसके ऊपर क्या अजर व सवाब है और उसके क्या फवाइद हैं। दूसरे नंबर पर कुछ थोड़ा सा जिक्र तिलावत के अलावा वो ये है कि अगर 3 चीज़ों का कम से कम इल्तिज़ाम कर ले बंदा कि एक तस्बीह तीसरे कलमे की, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये तीसरा कलमा है ना, ये तीसरे कलमे की एक तस्बीह पढ़ ले। दूसरे इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस में मरवी है कि आपने फरमाया कि मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ रोज़ाना। 70 का लफ्ज़ उसी हकीकी आदत के लिए भी हो सकता है और तकसीर के लिए भी हो सकता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अव्वल तो मासूम बनाया था। आपसे किसी गुनाह के सरजद होने का कोई एहतमाल ही नहीं, अल्लाह ने मासूम बना दिया, कभी गुनाह सरजद हुआ ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान फरमा दिया कि अगर कभी हो जाए तुमसे कोई गलती तो क़द ग़फ़रा लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह ने पहले ही माफ़ कर दिया। यानी अव्वल तो गुनाह हो नहीं सकता, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनका मर्तबा बड़ा होता है तो बाज़ औक़ात उनकी छोटी छोटी फ़ुरोगुज़ाश्तों को भी वो अपने लिए गुनाह समझते। बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आन तरक्की का फरमाते थे, दर्जात में आपके हर आन तरक्की हो रही होती थी। आज एक दर्जा है, बड़ा आलीशान दर्जा है, लेकिन अगले दिन मसलन उससे आला दर्जा हासिल होता था, उससे अगले दिन उससे आला दर्जा, उससे अगले दिन और आला दर्जा। तो जब आला दर्जे पर आप पहुंचते तो अपने पिछले दर्जे को अपने लिए गुनाह समझते थे कि भाई ये तो मैं नीचे वाले दर्जे में था, ये मेरे लिए मेरी गलती थी, मेरा गुनाह था, उसको गुनाह समझ लेते। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन, यानी नेक लोगों की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो मुक़र्रब लोगों उनको अपने लिए बुराई समझते हैं। मसलन नेक लोग जो हैं वो फ़राइज़ पर इक्तबा, फ़राइज़ वाजिबात पर इक्तबा कर ली, उन्होंने सुन्नतें पढ़ ली, नफलें कोई नहीं पढ़ी, तो नेक तो हैं इसलिए कि फ़राइज़ अदा कर लिए, वाजिबात अदा कर लिए, सुन्नतें अदा कर ली मुअक्कदा, नफलें नहीं पढ़ी कभी, ये नेक लोगों। तो जो मुकर्रब लोग हैं वो इसको अपने लिए बुराई समझते हैं कि सिर्फ फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों पर इक्तबा करें, नफलें न पढ़ें। तो हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। तो नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो मासूम थे तमाम खताओं से, लेकिन जो अपने नबूवत के आला शान के मुताबिक जिसको ये समझते कि मुझसे कोताही हुई उस पर इस्तिग़फ़ार फरमाते। तो हम जैसे लोग जो सुबह शाम पता नहीं कितने गुनाहों में, कितने आफतों में गिरफ्तार रहते हैं, हमारे लिए तो इस्तिग़फ़ार एक लाज़िमी चीज़ है। तो इसलिए कहता हूँ कि एक तस्बीह हुई तीसरे कलमे की, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह हुई इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अस्तग़फिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद ये है जो हम तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीहें हो, इनका एहतमाम कर लें। और चौथी बात ये कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करे, ये दुआ करे कि या अल्लाह आज का दिन शुरू हो रहा है और अब मैं दुनिया के मुख्तलिफ कामों के लिए निकलूँगा, तो ये मैं एक ऐसे मारके में दाखिल हो रहा हूँ, ऐसे कारजार में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर कदम कदम पर नफ्स और शैतान बहकाता है इंसान। तो अल्लाह मैं आपके बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं इस कारजार जिंदगी में दाखिल हूँ, जिंदगी के कारोबार में दाखिल हूँ, तो अल्लाह मेरी नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत फरमाइएगा और मुझे गुनाहों से मुझे महफूज रखिए। अपनी तरफ से ये नियत कर लो कि जो काम करूंगा अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी कुर्बानी भी आपके लिए, मेरी इबादत भी आपके लिए, मेरा मरना और जीना भी आपके लिए। ये नियत कर लो और ये समझो कि भाई अब रोजी कमाने जाऊंगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म की वजह से जाऊंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा में जाऊंगा। अपने घर वालों से मिलूंगा तो वो भी आपकी सुन्नत की इत्तिबा में मिलूंगा। अगर बाजार में किसी से मुलाकात होगी, दोस्त अहबाब के साथ उठना बैठना होगा, तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए होगा। तो ये दुआ कर लो और ये नियत इखलास की पैदा कर लें। सुबह के वक्त में ये चंद मिनट का काम, मुश्किल से आधे घंटे का काम हो, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल भी नहीं है, इसका एहतमाम करें। तो ये ज़िक्रुल्लाह के ऊपर बंदे को आमादा करने के लिए, ज़िक्रुल्लाह के लिए तैयार करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। तिलावत कुरान करीम, 3 तस्बीहात, अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से इखलास की भी दुआ और अपने अमल की दुरुस्ती के लिए भी दुआ। उसके बाद आप निकल गए कारोबार जिंदगी। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो सब आपके लिए हलाल है। तिजारत हो तो तिजारत हलाल है, मुलाजमत हो तो मुलाजमत हलाल है, काश्तकारी हो तो काश्तकारी हलाल है। जितने भी रोजी कमाने के जरिए हैं वो सब अल्लाह ताला ने हलाल किए। बस इतना हो कि पहली बात ये कि चलते फिरते उठते बैठते ज़बान पर कोई ना कोई जिक्र रहे। यानी वो तो कर लिया अपनी जगह मामूल पूरा, लेकिन मामूल के पूरा करने के बाद भी चलते फिरते उठते बैठते ज़बान पर कोई जिक्र हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन कलिमात में से या दुरूद शरीफ, बस जो भी ज़बान पर आ जाए वो ज़बान उससे तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते। देखो इसी को कुरान करीम ने उलुल अलबाब कहा है, यानी वो लोग हैं जो सही माने में अकल रखते। सही माने कौन अकल रखते हैं? अकल भी, यह अलबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान करीम ने, जो जमा है लुब की। लुब कहते हैं मग़ज़ को। जैसे बादाम के अंदर जो असल मग़ज़ होता है वो है असल मकसूद, छिलका मकसूद नहीं होता, तो वो मग़ज़ मकसूद होता है। अकल की भी एक जाहिर है और एक उसका मग़ज़ है अंदर, लुब। वो अकल, गहरी अकल यानी अकल का इंतहाई दर्जा, उसको लुब कहा जाता है। तो कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, कि इस आसमानों और जमीन की पैदाइश में और दिन के आने जाने में उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खालिस, दकीक और अमीक अक्ल रखने वाले हैं, गहरी अक्ल रखने वाले हैं। वो गहरी अक्ल रखने वाले कौन है? अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। जो गहरी अक्ल रखने वालों की तारीफ कर दी कि गहरी अक्ल वाले वो होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये तरगीब इसकी दी जा रही है कि खुदा के बंदो, तुम्हारी सांसें तो चल रही हैं और तुम किसी न किसी काम में मशगूल रहते हो, हमने कोई ममानात नहीं की, लेकिन ज़बान जो है तुम्हारी अगर वो खाली पड़ी है, काम तो कोई ख़ास कर रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो या मसलन कोई मजदूरी का काम कर रहे हो,
मजदूरी का कर रहे हो, मसलन कोई काम मेहनत का कर रहे हो, मुलाजमत में कोई ड्यूटी लग गई है वो कर रहे हो, खैर ठीक है, तुम्हारा सारा जिस्म उस काम के अंदर मशगूल है, होने दो, जायज है तुम्हारे लिए। लेकिन जबान तो खाली पड़ी है ना, वो तो ऐसी हालत में बिल्कुल खाली पड़ी है, उसको क्यों खाली पड़ा रहने देते हो? उसके जरिए अपने वास्ते नेकियों का ढेर लगाओ, नेकियों का जखीरा करो। सुभान अल्लाह एक कलेमा हदीस में आता है मिजान अमल को भर देता है। तो इस कलेमे की जुबान से अदा करते रहो, क्या तकलीफ है? कोई मशक्कत नहीं, कोई खर्चा नहीं, वक्त का भी खर्चा नहीं, क्योंकि अपने काम में लगे हो। दिल बयार दस्त बकार व दिल बयार, हाथ तो काम में लगे हुए हैं और दिल अपने महबूब के याद में मसरूफ है। तो जबान को क्यों खाली छोड़ते हो? जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, चलते फिरते उठते बैठते। क़यामुम व क़ुऊदुम अला जुनूबिहिम, एक जगह नहीं, कुरान ने कई जगह ये कहा है। और एक जगह फरमाया फ़ज़्कुरुल्लाह क़यामन व क़ुऊदन अला जुनूबिकुम, कि अल्लाह के जिक्र को खड़े भी, बैठे भी और लेटे हुए भी। जबान को खाली मत छोड़ो, क्योंकि अगर जबान को तुमने खाली छोड़ दिया तो ये मकूला मशहूर है कि खाने खालीना देव में गिरत, जो मकान खाली होता है उस पर देव कब्जा जमा लेता है, उस पर जिन आके कब्जा जमा लेते हैं खाली मकान पे। लोग डरते हैं, जो मकान खाली दिनों से काफी दिनों से खाली पड़ा हो तो लोग उससे इस वास्ते डरते हैं कि इसमें तो जिन्नात का गलबा हो गया होगा, जिन्नात का तसल्लुत हो गया होगा, इस वास्ते कि खाली पड़ा है इतने दिन से। तो जो घर खाली होता है उस पर जिन्नात कब्जा जमा लेते हैं। तो अगर ये जबान को खाली रखोगे तो इस पर शैतान के जिन्नात कब्जा करके इस जबान को गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, कभी झूठ बुलवाएंगे, कभी गीबत करवाएंगे, कभी बोतान तराजी करवाएंगे, कभी तुम्हें किसी और आफत में मुब्तला करेगी ये जबान। तो उसका रुख मोड़ दो अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा क्या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने मुख्तलिफ अमाल के बारे में फरमाया है। तो आपने जवाब में फरमाया कि अल यकून लिसानु का रत्बम बिज़िक्रिल्लाह, अफजल अमल यह है कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त जबान के ऊपर कोई ना कोई जिक्र रहे। और असल बात तो यह है कि जिक्र जबान से भी हो और दिल से भी हो, यानी दिल भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो। लेकिन अगर मसरूफियत की वजह से, अफकार की वजह से, मशगूलियात की वजह से आदमी का दिल अपने कुछ काम में लगा हुआ है, वो काम की तरफ मुतवज्जे है और सिर्फ जबान ही जिक्र कर रही है, तो इसको भी बेकार न समझो। ये भी बड़ी करामत और बड़ी बरकत की चीज है, बड़ी फजीलत की चीज है कि कम से कम तुम्हारी जिस्म का एक उज़्व अल्लाह ताला की याद में मशरूफ है, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। तो ये तरतीब जो मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबह फजर के बाद सबसे पहले तिलावत, कम से कम 3 तस्बीहात और दुआ इस बात की कि जो मेरा दिन शुरू हुआ है उसके अंदर मुझसे कोई गुनाह सरजद ना हो, सब काम मैं आपकी रजा के मुताबिक करूं। और फिर चलते फिरते जिक्रुल्लाह, जिस हालत में भी हो, जबान को ज्यादातर तर रखा जाए अल्लाह ताला के जिक्र से। तो ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम इस हुक्म में दाखिल हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, क्या ईमान वालो अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो। बस